आपने अपनी प्रेसी में कवर कर लिए हैं या नहीं, ये भी देखना चाहिए। Ensure that the length of the précis is 1/3 of the passage, original passage or not. वो भी चेक कर लें कि 1/3 है या नहीं। Check for spelling mistakes, grammar and errors in punctuations. अब पंचुएशनल एरर्स भी आपने चेक करने हैं प्रेसी में। जस्ट ये नहीं होगा कि आपने जस्ट वो जो है आपने प्रेसी लिख दी और कोमास देखने हैं, इन्वर्टेड कोमास देखने हैं, देन फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, ऑब्लिक्स हो, जो भी चीजें हो आपने चेक करनी है पंचुएशन में। राइट द फाइनल ड्राफ्ट एंड इंक्लूड अ टाइटल और हेडिंग। फिर आप क्या करेंगे, आप एक फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे और उसके बाद उसकी हेडिंग दे देंगे या उसको कोई टाइटल दे देंगे। दिस इज अ पैसेज। अब यहां पर देखें जी, हमारे पास एक पैसेज है स्लाइड नंबर 7 पे, सॉरी 8 पे, और वो पैसेज क्या है वो आपके सामने है। गिव बिलो given below is a passage, we will write a précis based on the passage. अब वो क्या है जी, a subject of great debate has been the nature of dreams. That people experience dreams can range from the mundane to the fantastic. They can create emotions like anxiety, joy, fear, anger. In the dreamer, dreamers often feel that they experience in their dreams is very real. It is common for people to have recurring dreams. Some people have recurring dreams of falling, flying, or being chased. Nightmares are also common and often occur among children and adults. Nightmares may be the result of unresolved conflict or anxiety. Many theories have been put forth to explain why dreams occur. One of the theories is that dreams are merely production of incomplete thoughts or events experienced in the day. Another theory is that dreams are representations of our desires and fears. It has also been propagated that our dreams are populated with universal symbols that may be recognizable across a myriad of culture. Sometimes dreams have been reported to certain warnings or messages about the immediate future. It has also been suggested that dreams can be used Dreams journals may be mentioned as a hobby or to gain a better understanding of dreams and consequently oneself. oneself. Oneself, Carl Jung, the famous psychologist, mentioned a dream journal known as Red Book. जी बेटा, इसको जरा देखिएगा। ये जो पैसेज आपको मिला है, इस पैसेज को देखिएगा। मूवी को भी बेशक छोड़ दें, मूवी अभी ना देखें ज्यादा, पैसेज को जरा देखिएगा। अब इस पैसेज में आप लोगों को जो पॉइंट्स आउटलाइंस, जो पॉइंट्स अंडरलाइन किए गए हैं या जो ब्लॉक्स में हैं, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस पैसेज। उसके बाद हम क्या करेंगे बात, sample passage. The outline of the passage is formed that using the main points it is as follows. Outline range of emotions in dreams, recurring dreams. ये पूरे के पूरे वो पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसको हम हेडिंग दे देते हैं, नेचर ऑफ ड्रीम्स। When people dream, they experience various emotions such as anxiety, joy, fear. Often dreamers believe their dream is real. अब इसमें क्या है जी, हमारे पास ये कौन से ड्रीम्स हैं,
अब आप लोगों को इसके नेचर ऑफ ड्रीम्स का जो एक पैसेज है, इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ आइडिया होता है कि ये प्रेसी क्या होती है? लेकिन नहीं होगा आइडिया। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए इसको सुनने के बाद कि सर आपने तो कहा था कि मेन पैसेज से कोई जो वर्ड है, सॉरी, कोई जो सेंटेंस है वो नहीं आएगा। तो याद रखें, मेन पैसेज से कोई सेंटेंस नहीं आएगा, लेकिन मेन पैसेज से पॉइंट्स तो आएंगे। तो वो जो कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। इस तरह इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा, और इसको हम डिस्कस भी करेंगे, बट आप लोगों के समझने के बाद इसको मैं डिस्कस कर सकता हूँ। और फर्स्टली आप उस मूवी को देखिएगा जो आपको बताई है मूवी, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ टाइटल। अब हम नेक्स्ट आते हैं, स्लाइड नंबर 12 जो है वो देखिएगा। उसमें वो कहता है कंक्लूजन किसे कहते हैं। Movie, the title, The Précis, reflects the theme of the passage. This is the conclusion. The Précis itself is one third the length of the original passage. Third पे क्या कहते हैं? It is written in simple and unambiguous language. And the last one is, it is a well written Précis. तो बेटा इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, प्लीज। सर कुछ समझ नहीं आया। नहीं आया ना? तो बस यही वजह है जी बेटा। मतलब कि हमने ना कुछ पॉइंट्स लेने हैं, उसको खुद अपने अल्फाज में बयान करना है, सेट खुद कर लेना है। बेटा पॉइंट्स आपने कहीं से नहीं लेने, आपने पॉइंट्स उसी में से चूज करने। ये जो ब्लॉक्स हैं देखें, पैसेज पे आए, स्लाइड नंबर जो 9 है उस पे आए, उसमें 9 और 8 पे एक पैसेज है, गिवन बिलो इज अ पैसेज, वी विल राइट अ प्रेसी बेस्ड ऑन दिस पैसेज। अब ये देखिए एक पैसेज है, इसमें ये जो ब्लॉक्स में ब्लॉक लाइन किए गए वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स बेसिकली दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस पैसेज। आपने उन मेन पॉइंट्स को कवर करना है इन योर प्रेसी राइटिंग। मतलब उनको उठा के और खुद सेट करके लिख देना है जी। उन पॉइंट्स को आपने खुद से लेके। एक्सप्लेन करना है, लेकिन सर्कल आपका वही रहेगा जितना पैसेज की लिमिट है। अपने पास से कोई बात आप ऐड नहीं करेंगे। सर अगर लेंथ ज्यादा होगी तो बेटा तो फिर आप शायद उसका 1/3 करना। अगर Excuse me, पैसेज sir? आपका 1, जी बेटा एक मिनट सुनिएगा, अगर आपका सर, पैसेज 200 वर्ड्स का है तो 200 वर्ड्स का जो थर्ड होगा वो कितना बनता है? सर जी वो तलखीस में ऐसे करते थे कि टोटल जितने वर्ड्स होते थे उनको मतलब गिन लेते थे, तो उनका जो थर्ड हिस्सा बनता था उतने वर्ड्स लिख लेते थे तलखीस करके। तो इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन में भी ऐसे ही कर लें। जी जी बिल्कुल, कम्प्रीहेंशन नहीं, प्रेसी है बेसिकली ये, दिस इज नॉट कम्प्रीहेंशन। तो प्रेसी में आप यही करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको, आप स्लाइड्स आपके अगर पास हो तो आप देख सकते हैं। स्लाइड्स में मैंने 8 और 9 नंबर स्लाइड पे देखिए एक पैसेज है, उसमें हमने ब्लॉक्स दिए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। वो इसीलिए ब्लॉक्स दिए गए हैं कि ये सारे मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज हैं। फिर नीचे सैंपल पैसेज जो है, आउटलाइंस उसकी इकट्ठी करके वो सारे पॉइंट्स जो है इधर लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए कि ये पॉइंट्स बनते हैं। फिर नीचे उसको सिंपल प्रेसी फॉर्म में प्रिसाइज भी कर दिया राइटर ने। नेचर ऑफ ड्रीम्स का उसको हेडिंग दिए, उसको टाइटल नहीं दिया, इसने हेडिंग दे दिए। या आप कर सकते हैं ड्रीम्स, या आप कर सकते हैं रिक्योरिंग ड्रीम्स, या आप इसका टाइटल दे सकते हैं वेरियस इमोशंस, या खाली इमोशंस, या आप इसको कह सकते हैं प्रॉब्लम्स, फिर आप कह सकते हैं प्रेडिक्शंस। ये सब के सब, ड्रीम जर्नल भी आप इसका नाम रख सकते हैं। आप इसको जो है बेटा जो हेडिंग होती है, हेडिंग बेसिकली जो है वो, उसके लिए हम जो है वर्ड्स को 3 to 5 तक भी जा सकते हैं, लेकिन जो टाइटल होता है वो 1 से 2 वर्ड का होता है। क्योंकि जब हेडिंग्स आप किसी दे रहे होते हैं ऐसे में, जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो आप देखें, आप पूरी की पूरी हेडिंग लाइन लिख देते हैं, दिस इज हेडिंग।
और जब आप टाइटल पे आते हैं तो टाइटल कभी भी ऐसे का एक ही होता है, माई स्कूल। अनएम्बिगुअस का मतलब बेटा ये है कि एम्बिगुअस होता है जो चीजें आपको क्लियरिटी पैदा ना करे बल्कि उलझी हुई हो, एम्बिगुअस। एंड अनएम्बिगुअस क्या होता है, जो कि चीजें उलझी हुई ना हो, दिस इज अनएम्बिगुअस। जी बेटा, और पूछिए इसके हवाले से ताकि सर आपके। जी बेटा बोलें। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर दें अगर आवाज नहीं आ रही। बेसिकली जो पैसेज है, पैसेज तो एक आप लोगों का जो है वो, आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जो नेचर है या जो उसके एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, या जो वो किस पर्पस के लिए है, वो क्या कहना चाहता है, उसमें क्या मेन अथॉरिटीज हैं, वो सब के सब आपको थ्रू प्रेस ही पता चल सकते हैं, अदरवाइज दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अस। जी, एनी क्वेश्चन? सर मतलब एक पैसेज है, उसमें से हम पहले अपने इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखेंगे कितने हैं, वो लेके तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं देखेंगे बेटा, आप उसके पॉइंट्स देखेंगे। फिर पॉइंट्स वही देख बात आ रही है, के पॉइंट्स देखेंगे कि इसमें तो कौन कौन से पॉइंट्स पे बात करता है राइटर जो है। सर वो पॉइंट्स को लेके उसका 1/3 बनाना है। मतलब अगर 200 वर्ड्स हैं तो उसका 1/3 70 के लगभग इतने वर्ड्स में, उन सारे पॉइंट्स को जी, लेके इतने वर्ड्स में 60 पैसेज बनाना 60 टू है आगे। 65 तक आपने उसको बनाना है, पॉइंट सारे डिस्कस होने चाहिए, बट इन योर ओन वर्डिंग। ओके सर, थैंक यू। पॉइंट्स वही रहने चाहिए लेकिन वर्डिंग आपकी होनी चाहिए। सर वर्डिंग जो पैसेज के मुताबिक ही होनी चाहिए, जैसा पैसेज है। बिल्कुल बेटा, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, जैसा पैसेज होगा वैसी ही हमारी वर्डिंग होगी। लेकिन पैसेज हमेशा वैसे होता है, वो पैसेज से इस तरह मुराद है कि उसका टेंस वही होगा, लेकिन जो वर्डिंग से मुराद ये है कि वर्डिंग अगर उसकी मुश्किल भी हो तो आपने उसको आसान करके लिखना। ओके सर, थैंक यू। जी, टाइटल मैक्सिमम 2 वर्ड्स का, 1 से 2 वर्ड्स, एंड जो सब टाइटल है ये उसको 3 से 5 वर्ड्स का होता है वो। जी नेक्स्ट। सर इस प्रेसी में सबटाइटल तो नहीं दिया ना हमने। नहीं नहीं बेटा, सब टाइटल वो आप टाइटल भी तभी लिखेंगे जब आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि टाइटल क्या हो सकता है, टाइटल कैसे हो सकता है, टाइटल में क्या होना है क्या नहीं होना। अदरवाइज आप लोग वो भी नहीं लिखेंगे टाइटल भी। ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर ये नेचर ऑफ ड्रीम इन्होंने टाइटल दिया ना अभी प्रेसी को। जी जी, ये नहीं, ये बेटा हेडिंग दी है इसने, टाइटल नहीं दिया। दिस इज हेडिंग। जो जी टाइटल होगा बेसिकली बेटा, वो टाइटल जो है वो 2 वर्ड्स का मैक्सिमम होगा, उसका एक रूल है ना, तो उस रूल के अकॉर्डिंगली वो 1 से 2 वर्ड्स का होगा। सर जो ये कितने हेडिंग्स मार्क्स की होती होगी? है ये बेटा कित... डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हो सकता है। सर आवाज नहीं आ आप रही। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पीएमएस में है, उसके 40 मार्क्स होते हैं। सर अगर आपकी आपके आवाज नहीं आ पेपर में रही। आई तो। सर जी बेटा, आपकी मैं कह आवाज रहा हूँ कि नहीं है। सीएसएस में और। जी, अब आ रही है आवाज? अब आ जी रही है अब आ आवाज? रही। जी अब आ रही है। जी जी बेटा, जो सीएसएस और पीएस में पेपर्स होते हैं
उनमें प्रेसी 40 नंबर की होती है। लेकिन अगर आप इसको अपने रिलेटेड रखना चाहें, अपने पेपर के रिलेटेड, तो फिर ये मैक्सिमम 5 to 7 मार्क्स की होती है प्रेसी। सर ये कैसे पूछते हैं वो? ये अभी नहीं आपको आएगी, अभी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा खुद से, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा टेक्निकल वर्क की तरफ जाना है। पहले तो आप लोग जस्ट वो इजी इजी पढ़ते रहे हैं ना, तो अब थोड़ा सा हमने जाना है टेक्निकल वर्क की तरफ। सर ये जैसे तो ये क्वेश्चन आप लोग, ये हमारे मिड में शामिल होगा, मतलब जी मिड में बेटा, जो मिड में ना हुआ तो मिड में, फाइनल में। अब ये समझ लें कि यूनिवर्सिटी का मिड और फाइनल सारे एक ही हैं। हमारे टोटल कितने टॉपिक्स हो गए हैं अब तक क्लास में? सर एग्जैक्ट नहीं पता। चले, वो मैंने अपने एक वो मैंने तो नोट किए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग उसको सर देख लें। 7 सिर्फ 7 होंगे। 5 हो गए। मेरे 7 ख्याल से टोटल 6 हुए हैं अभी तक। अब अगर देखें तो आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों के हमने 20 टॉपिक्स करने हैं, 20 टॉपिक्स। अब 20 टॉपिक्स में एक टॉपिक हमारा टेंसेस है, एक टॉपिक हमारा ग्रामर है। ये 2 टॉपिक अगर हम रिमूव कर दें, क्योंकि ये हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, थर्ड जो है हमारा वो कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स होगा। फोर्थली टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सारा एक ही टॉपिक काउंट होगा। ओके जी, इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज करनी है, और वो चीज है व्हाट इज स्कैनिंग, व्हाट इज स्किमिंग, SKIMMING, स्किमिंग। अच्छा, आप सारे लोग ना मिड टर्म के बारे में, फाइनल टर्म के बारे में परेशान हुए हैं। बेटा, आप अगर मेरे लेक्चर्स लेते रहेंगे ना, तो मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि आप लोग कभी भी मिड में या फाइनल में फेल नहीं होंगे, बल्कि 80+ मार्क्स के साथ पास होंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुझे लेक्चर्स मेरे समझें, उन लेक्चर्स को देखें, तो आप लोग काफी सीखेंगे। इंशाल्लाह। तो आप लोग बेटा एक कोशिश करें, अभी आपका जो है, जो भी टॉपिक आप लोग करते हैं, उस टॉपिक को जरा गो थ्रू ठीक तरीके से करें, ताकि आपको कोई इशू ना रहे। बाकी रह गया प्रॉब्लम आप लोगों के कोर्स का, तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक लाइन या एक वर्ड भी ऐसा ना दूं जो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा ना हो। और इन स्लाइड्स को जो है, वो भी आप गो थ्रू करते रहे। जी 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 बेटा। सर आप स्टार्ट में ना टेंसेस के साथ थोड़ा सा जो लास्ट जो रिसेंटली हमने लेक्चर लिया था ना, उसके रिलेटेड भी पूछते होते थे, तो वो भी बड़ा ना सर हमारे लिए एक मतलब कहते हैं ना अच्छी चीज थी। हम फिर उसको भी देखते थे कि यार को पूछन दसना उसके लिए नहीं है। मुझे 3 आपके क्लास फेलोज के फोन आए। उन्होंने कहा सर, एक रिक्वेस्ट है, आप ना पूछा करें। वो सर, पूछने से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है लेक्चर का, तो आप नेक्स्ट पढ़ा दिया करें। कि तो ये मैंने फिर बंदे उसके वो जो बाद, बताना, ये जो बंदे वो जो पढ़ना नहीं चाहते। हाँ बस वो फिर मैंने कहा, मैंने बाकी में सारी क्लासेस के साथ मेरा वैसे ही चल रहा है, सिर्फ ये नहीं, रिक्वेस्ट पे और जोर फरमाइश पे मैंने अपना जो है वो चेंज किया। कोई मैंने कहा ये बेचारा डिसाइड। सही इनसे क्या मेरे चलें पास ठीक आ है जी, जाता है, नेक्स्ट इनसे टाइम। बात कर। सर मैं खुद नहीं पढ़ता, मैं आपको खुद कह ओके रहा जी, हूँ, मैं पढ़ना मैंने भी नहीं है, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ यार कोशिश जी। करेंगे सर जरूर। चलें, ये तो बेटा अच्छी बात है। चलें फिर तो मैं इनको बड़ा अच्छी तरह खींच लिया करूंगा यहीं पे। सर बाकी सर आप भाई तो हैं हमारे, हम कोई मसला नहीं है। आपकी सर इज्जत भी बेइज्जती भी हमारे लिए प्यार है, थोड़ी सी कर भी देंगे, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं, कोई मसला नहीं। आप इंशाल्लाह ताला वरिड ना हो। लेकिन बात यह है बेटा कि कोशिश करें कि जो मैं काम करवा रहा हूँ वो आप लोग काम अपना करें, ताकि आप लोगों को इशू ना थैंक यू सो मच सर। तो सर आपने ये रहे। मेरी बात वेलकम। को सीख, जी जी, बेफिक्र रहें। जो कोई मसला है जो भाई मेरे से आके बात करे डायरेक्टली आईबी में, मुझे कोई मसला नहीं, मैं जवाब दूं उसके लिए। ओके जी, ओके बेटा। तो हमारा जो टॉपिक था, अब कल वाला तो एक सेम ही था,
जो हमने बात की है तो उसको तो हमने ही, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला आपको इसी वीक में स्लाइड्स मिल जाएंगी और इसी वीक में आपको जो है वो आपकी असाइनमेंट्स मिल जाएंगी ताकि आप लोगों को कोई इशू ना रहे। तो बाकी इस हवाले से अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं और सर मैं कोशिश असाइनमेंट किस करूंगा किस कहाँ कहाँ करनी है? आपको भेजनी बेटा कहाँ कहाँ वो पे? आपको, बेटा जब आपको असाइनमेंट मिलेगी ना उसमें सारी डिटेल होगी। सर आपने वो नंबर देना था किसी अपने स्टूडेंट का जिसे हम सबमिट जी करवा जी दें, वो तो काइंडली बता दें। बेटा, पहले असाइनमेंट्स मिलेंगी तो फिर आपने जाना है ना नंबर पे, पहले ही दे देना। आपको असाइनमेंट्स में पहले सारी चीजें जरा जरा गपशप करना चाह रहे हैं ये लोग सब। तो आपको इंशाल्लाह सब अवेलेबल हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, बाकी अब हमारे पास एक और टॉपिक है। वो टॉपिक है जो आपने करना है, उसको जरा देख लीजिएगा। स्किमिंग किसे कहते हैं? SKIMMING, स्किमिंग। स्कैनिंग SCANNING, SCANNING, स्कैनिंग। फिर नेक्स्ट है जी इंटरनल रीडिंग, INTERNAL, इंटरनल रीडिंग। दूसरी है एक्सटर्नल रीडिंग। एक्सटर्नल रीडिंग क्या होती है जी, वो भी आप लोगों को करनी है। तो ये 4 पॉइंट्स हमने और डिस्कस करने हैं। उसके बाद हम लोगों ने कि आप लोग जो हैं कोशिश ये करें कि अपना जो काम है उसको कंसंट्रेशन के साथ करें। उसके बाद हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो क्या था, वो आपने शायद जो लास्ट टाइम में पढ़ रहे थे भूल गए हैं जी, को नहीं पता। स्ट्रेटजीज। सर रीडिंग जी बेटा, स्ट्रेटजी। जी रीडिंग स्ट्रेटजीज जो हैं उसके बाद अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आएंगे रीडिंग स्ट्रेटजीज पे। जी बेटा, हम स्लाइड नंबर आई थिंक 3 पे थे। तो स्लाइड नंबर 3 को जरा देखिएगा। इसका जो पॉइंट नंबर था क्या था? विद योर पार्टनर एंड एक्स्ट्रा। अच्छा जी, चलें आज आपका लगता है जी मूड है या नहीं है, मुझे ये बताएं। ये जो मैसेजेस आप कर रहे हैं स्टार्ट करें या यू वांट टू लीव द मीटिंग? रहने दें सर। तो जी कर दें लीव। रहने दें। चलें ठीक है जी, इट्स ओके। मुझे आप लोग बता दें, कोई मसला नहीं। आप मेरे सारे छोटे भाई हैं तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आप जब भी पढ़ें जितना पढ़ें शौक से पढ़ें। सर आप ओके बहुत बेटा, अच्छे हैं। टेक थैंक्स सर, वेलकम इंशाल्लाह। वेलकम। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।